Assalamu alaikum. I am Mishal Fatma, the social media manager of Eco Foundation. Thank you so much for joining this session on time. I would like to invite the group leader of Eco Foundation, Mr. Adil Ahmed. Assalamualaikum everyone. I hope you are seeing me. Basically, we all started this with a dream. Our friend here, Alize Hussain, which is also an environmentalist, had a dream to beautify our nation. आप सब ने हम मुझे उम्मीद है आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने घर के निकलते हुए या इर्द गिर्द कहीं कूड़ा नहीं देखा होगा। आप सब रोज सड़क को भी देखते हैं और मुझे ये भी पता है कि आप में किसी को पसंद भी नहीं आता होगा किसी जगह की साइड पे कूड़ा पड़ा है, कहीं भी पड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हमने लेके इनिशिएटिव एक लिया था कि अगर ठीक है हमारा गरीब मुल्क है, लेकिन जिस तरह एक गरीब दुल्हन को सजाया जाता है, क्यों ना हम अपने मुल्क को भी उसी तरीके से सजाएं। और हमने फिर इस पर डीप रिसर्च की, इको फाउंडेशन बनाई और इसमें हमारा बहुत ज़्यादा साथ हमारी मेंबर अलीज़े हुसैन जिनका आइडिया था उन्होंने दिया, और बाकी सारे टीम मेंबर हमारी बहुत ज़बरदस्त टीम है। हमारे पास वेटरिनेरियन है, हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास सीए, इन्वायरमेंटलिस्ट, फूड साइंटिस्ट। हमारी बहुत रिच टीम है जो इसके लिए बहुत बेहतर काम कर सकती है। अब मैं बुलाऊंगा अलीज़े हुसैन को कि वो स्क्रीन शेयर करें स्लाइड्स की और हमारी प्रेजेंटेशन शुरू करें। Okay, before Elise starts her presentation, let me share a few points. Microphones muted, and if you want to turn on your camera, you can. If you need a certificate for attending this session, you have to attend the session completely. After that, if you have any queries, you can type the questions in the chat box or stay behind the session. Your all questions will be answered at the end of the session. Please avoid extra chatting in the chat box. Thank you. इको फाउंडेशन, हमने अपना नाम अपनी इको सिस्टम को देख के रखा है कि इको फाउंडेशन के ऐसी फाउंडेशन जो कि नॉन प्रॉफिट है और हमारे इको सिस्टम के लिए एक बेनिफिशियल और एक फ़ायदेमंद कार्रवाई करेगी। ग्रीन ड्रीम्स, ब्लू स्काईज, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल सनराइज, दिस इज आवर मोटो एंड दिस इज आल्सो आवर स्लोगन। वी वांट green and beautiful country with blue skies and very sustainable environment. First of all, I would like to introduce my team members. It's Adil Ahmed, myself, then Aqsa Shahid, food scientist, Gazanfar Abbas, Shan Ali, Mishal Fatma, Muhammad Umar Hayat, Alize Hussain, Muqaddas Yasin, and Muhammad Hassan Rahman. Now I would like to call those members so they can briefly introduce themselves. First of all, Mishal. I am Mishal Fatma. I am doing Bachelor's in English Literature and Linguistics from Bahauddin Zakria University, Multan. I also freelance as a content writer. Currently, I'm working as a social media manager at Eco Foundation. Then we have Mr. Gazanfar Abbas. Hello everyone, Assalamu alaikum, and thank you for coming in our session. Here myself, Zanfar Abbas, professionally working as a microbiologist, now here working as a collaboration manager of Eco Foundation for any collaboration with different societies and different organizations to collaborate with Eco Foundation for upcoming session and upcoming goals achievements. Then we have Shan Ali. Assalamu alaikum fellows, it's myself Shanadi. I am the student of BS Honors Applied Microbiology final semester from the University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore Sub-Campus Jung. Currently, I am working as intern in the Quality Control Laboratory at National Institute of Health. Thank you, Shan. Then we have Aqsa Shahid. Assalamu alaikum. I am Aqsa Shahid and I am food technologist and I work as a data analyst in Eco Foundation. Thank you. Then we have Muhammad Umar Hayat. Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining. My name is Muhammad Umar Hayat and currently I am doing Doctor of Veterinary Medicine from Bahauddin Zakria University, Multan, and I am serving as a research associate in Eco Foundation. Then we have Alize Hussain, our environmentalist. Assalamu alaikum. My name is Aliza Asnan. I am doing my bachelor's in environmental sciences from Bahauddin Zakria University. Currently, I am an environmentalist in Eco Foundation. Then we have Muhammad Hassan.
Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Hassan. I am doing DVM, Doctor of Veterinary Medicine from Bahauddin Zakariya Multan, and here I am serving as a research associate. Thank you. Then we have last but not least Muqaddas Yasin. Assalamualaikum. I am Muqaddas Yasin. I am currently pursuing CA from ICAP, and I am currently working as content creator at Eco Foundation. Thank you. Now I would like to call Alize Hussain to continue the session. Assalamu alaikum. First, our Eco Foundation is initiative to build a sustainable and eco-conscious community through the adoption of waste management and practice. हमने Eco Foundation रखने की हमारी बेसिक वजह यही थी कि हम हमारा जो वेस्ट है सॉलिड वेस्ट उसको इस तरह से मैनेज करें, उस तरह से इसको हम रिसाइकिल करें कि हमारे जो वो वेस्ट डिजीजेस कॉज कर रही हैं उनसे हम ह्यूमंस को बचा सकें। और जो डिजीजेस हैं वो अगर एनिमल भी उस वेस्ट से कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी फूड चेन में आ जाता है और उससे हमारी डिजीजेस कॉज होती हैं डिफरेंट तरीके से और ह्यूमन को मतलब ह्यूमन की हेल्थ के लिए वो डेंजरस होती है। तो इसलिए हमारा मिशन ये था कि हम अपने ह्यूमंस को बचा सकें अपने वेस्ट से, सॉलिड वेस्ट को। हम अपनी इस तरह की प्रैक्टिसेस लाएं, इस तरह की हम कोलैबोरेशन करें वेस्ट मैनेजमेंट वाले सिस्टम से कि हम अपना जो वेस्ट है उसको एक रिसाइकिल करें और जो भी ह्यूमन को उससे बचा सकते हैं उनसे बचा के एक सेफ इन्वायरमेंट को क्रिएट करें। सेकेंड हमारा एम्पावरिंग लोकल कम्युनिटीज, हम लोकल कम्युनिटीज को अवेयरनेस दें कि हम अपना इस तरह का अवेयरनेस दें कि वो जो हमारा वेस्ट है उसकी वो इस तरह उनको मैसेज से बच सके। थर्ड हमारा लास्ट है कि हम अपना जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है उसको हम अपना कम करें। जो भी हमारा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, हम जो कंज्यूम तो कर रहे हैं, जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं उसको कम करें, रिसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी वजह से हमने ये अपना एक मिशन बनाया है कि हम अपने ह्यूमंस को बचा सकें इन डिजीजेस से, सॉलिड वेस्ट को हम मैनेज कर सकें और बहुत ही अच्छी सी प्रैक्टिस लाके लोगों को अवेयरनेस दे के हम अपनी कम्युनिटी को एक सेफ एनवायरनमेंट करें और सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाएं। थैंक यू। ओवर टू यू विशाल। Okay, Adil will proceed the further presentation of what is the target audience of Eco Foundation. टारगेट ऑडियंस के हम बेसिकली टारगेट मेनली किन लोगों को कर रहे हैं अपने इस इनिशिएटिव से। सबसे पहले हम सबसे बड़ी रूट को पकड़े हैं हेल्थ वर्कर्स। हेल्थ के वर्कर्स जाने अनजाने में हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे जो है सॉलिड वेस्ट को पैदा करते हैं जो कि बायो हैजर्डस और बायो लाइफ के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बेसिकली जैसे आपके हॉस्पिटल का वेस्ट है या इसके अलावा दूसरे ऐसे बहुत से बायो वेस्ट हैं जो कि हमारी डायरेक्टली लाइफ को थ्रेटनिंग करते हैं। अगर ह्यूमन उसको कंज्यूम नहीं भी कर रहे, वाइल्ड एनिमल कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं हमारी फूड चेन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्थ के वर्कर्स को कर रहे हैं कि उनको हम अवेयरनेस दें। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हमारे पास मौजूद तो हैं लेकिन उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे। तो हम वी बिलीव कि अगर हम इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट को इस तरीके से अवेयर करें तो हम अपनी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल और पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं। देन वी हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज। आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट ऑल्दो वी हैव रेगुलेटरी अथॉरिटीज बट दे आर नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान में बहुत सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ तो हैं, उनकी सैलरीज भी जा रही हैं सब कुछ, लेकिन उस तरीके से वो काम नहीं कर रही। आपको मुख्तलिफ बड़े शहरों में कूड़ा करकट नज़र आएगा। कराची, लाहौर में ये बहुत बड़ी इशू है। कराची में पहले था, लाहौर में भी अभी इशू बन गया। सो हम इको फाउंडेशन के ज़रिए ऐसे लोगों को भी ऑन बोर्ड करेंगे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रखते हों और जो कि इसको सही तरीके से टैकल कर सकें। दैन एट लास्ट वी हैव वेटनेरियंस। जिस तरह पहले मेरे फेलोज ने भी बात की कि बहुत बड़ा कॉज हमारे पास जो बीमारियां हमारी सोसाइटी में आती हैं उसका ऐसे जो जानवर और ऐसी जो फूड चेन के अंदर एडिशन है हमारी जो कि वाइल्ड एनिमल्स के जरिए होती है। बेसिकली आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे कूड़ा करकट में आवारा कुत्ते, आवारा बिल्लियाँ उसमें फिर रही होती हैं और उनको कंज्यूम अगर कोई करता है या वो कहीं पे बीमारी से मर जाती हैं, वो जरासीम ट्रांसलेट होते हैं हमारी इकोसिस्टम में। सो बेसिकली वेटनेरियंस को भी हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं कि किस तरीके से वो हेल्प कर सके इन एस्टेब्लिशिंग अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। Then I would like Ghaffar Abbas to continue with problem statement. Ji, Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me on this session to talk about our major problem in our environment. Let me confirm my voice is clear or not. Yes, Ghaffar, it's loud and clear. Okay. First of all, हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे पाकिस्तानी अक्सर हम देखते हैं कि हर बंदे को आजकल एक शिकवा है, गिला है। पाकिस्तान में ये मसले हैं, ये मसाइल हैं और ये सारी चीजें हैं।
तो उन कभी मसलों का आपने सोचा वो मसले कैसे पैदा होते हैं? वो मसले हम इंसानों के ही पैदा किए गए हैं और हम ही उन मसलों का सबब है। जब तक हम खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये वाले मसले मसाइल हम खुद भी फेस कर रहे हैं और हमारी आने वाली नस्लें भी ये फेस करती रहेंगी। सबसे बड़ा मसला जो हमारे इन्वायरमेंट में आया हुआ है वो है वेस्ट मैनेजमेंट का। अब वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? आपको पता है कि जो भी हम चीजें इस्तेमाल करते हैं उसका कुछ ना कुछ बचा खुचा जो भी कूड़ा होता है उसको हम वेस्ट ही बोलते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एक ऐसा लॉ है कि दुनिया में कोई भी चीज खत्म नहीं होती, वो अपनी हालतें चेंज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो वो क्या बनेंगी? गैसेस बन जाएंगी, राख बन जाएगी। लकड़ी से वो हालत उसने चेंज करके हीट पे चली जाएगी, उसकी हालत गैसेस में चली जाएगी और थोड़ा सा सॉलिड वेस्ट में चली जाएगी। इस तरह हर चीज, कोई भी ना कोई चीज खत्म नहीं होती, लेकिन वो एक हालत से दूसरी हालत में कन्वर्ट होती जाती है। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर कि हम जो ये वाला वेस्ट है उसको प्रॉपर ना तो डिस्पोज कर रहे हैं, ना ही कोई हमारे मुआशरे में ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको प्रॉपर डिस्पोज किया जाए, ना ही उसका कोई रिसाइकलिंग प्रोसेस है। अक्सर आपने देखा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक क्या करते हैं, एक चीज को दूसरी बार यूज करने के लिए उसको रिसाइकल करते हैं, एज लाइक प्लास्टिक है और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अगर हो भी रहा है तो बहुत स्मॉल लेवल के ऊपर हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हम अपने रिसोर्सेज तो यूज कर रहे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है उसके ऊपर हम कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि हमारी पब्लिक के अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम आने वाली नस्लों का नहीं सोच रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके रूट काज एनालिसिस। रूट काज क्या है? ये वाले जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये वाला जो मसले मसाइल आ रहे हैं, इसके प्रॉब्लम कहाँ पे हैं? सबसे पहले इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल है। आई थिंक सो आपने अक्सर देखा है कि डिफरेंट देहातों की तरफ जाएं या शहरों से बाहर निकलें तो वहां पे जो भी शहरों का कूड़ा होता है या कुछ इस तरह का वेस्ट होता है उसको खुलेआम फेंका गया होता है, जिसकी वजह से उस एरिया में, तो जिस एरिया से कूड़ा उठाया जाता है वहां से तो सफाई हो जाती है, लेकिन जिस एरिया में फेंका जा रहा है वहां पे प्रॉपर इसको डिस्पोज नहीं किया जा रहा, खुलेआम फेंक दिया जाता है, जिससे डिफरेंट डिजीज, इमर्जिंग डिजीज हो रही हैं। अक्सर आपने हमारे मुआशरे में सुना होगा, कभी किसी डिजीज का स्पिल हो रहा है, कभी कोई डिजीज आ रही है, कभी कोई आ रही है। तो ये सारा प्रॉब्लम हमारे क्रिएट किए हुए हैं। दूसरे, हमारे पास इंसफिशिएंट कलेक्शन सिस्टम्स ही नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल पे कर रही है, लेकिन लोग फिर भी उस सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं मदाखलत कर रहे होते हैं, अपनी ड्यूटी को ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे रहे होते। ना ही हमारे पास कोई रिसाइकलिंग प्रोग्राम है एक ब्रॉड लेवल पे। उसके साथ हमारे पास लिमिटेड कंपोस्टिंग प्रैक्टिसेस है। अगर हम इसी वेस्ट को, जैसे कि हमारे पास एनिमल वेस्ट होते हैं या स्लाटर हाउस से कुछ वेस्ट निकलता है या कुछ इस तरह का हमारे यहाँ एग्रीकल्चर के लिए कंपोस्टिंग मटेरियल जो हमारी खादें होती है, नेचुरल खादें, अगर हम उनको, इन सारी चीजों को उस प्रैक्टिस में ले आए तो यूज करें तो हमारे काफी सारे रिसोर्सेज बच सकते हैं और हमें उसका फायदा हो सकता है। हमारी लैंडफिल मैनेजमेंट नहीं है। अक्सर आपने देखा है, अगर कूड़ा हम फेंकते हैं तो वही वाला ब्रीच होके वाटर हमारा ग्राउंड वाटर सप्लाई में जा रहा है, जिसकी वजह से आपने हर तरह से सुना होगा कि हमारा ग्राउंड का पानी खराब हो चुका है, फिल्टर वाला पानी पिए। मोस्टली शहरों का तो पानी खराब हो चुका है। सबसे पहले पाकिस्तान में सबसे जो एक अच्छा वाटर था वो फैसलाबाद, जहांगीर, सारे एरिया का गिना जाता था, सेंट्रल पंजाब का। लेकिन आजकल आपको पता है पूरे पंजाब में सबसे नकारा पानी फैसलाबाद का गिना जाता है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री यहाँ पे लगा दी गई है और उस इंडस्ट्री की कोई प्रॉपर मैनेज नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारा लैंड वाटर खराब हो गया है। और ये सारी चीजें हमारे हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ सिक्योरिटी के साथ रिलेटेड है। आपको पता है कि हमारे जितने भी हेल्थ इश्यूज होते हैं ये हमारे फूड चेन के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। 90% ऐसी डिजीजेज हैं जो माइक्रोबियल डिजीज है। और वैसे क्या होता है, वो हमारे लिविंग सिस्टम के साथ इन्हिसार कर रही होती है, और लिविंग सिस्टम में हमारा फूड चेन भी आ जाता है, हमारा मेल जोल भी आ जाता है लोगों के साथ। इसमें सारे प्रॉब्लम हमारी इन्हीं चीजों से क्रिएट हो रहे हैं। उसके अलावा इलीगल चीजें हो रही है, डंपिंग इलीगल की जा रही है, कोई हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। अगर ये लोग कर रहे हैं तो अगर इसके ऊपर एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए प्रॉपर, जो इसके ऊपर मिस्टेक करता है या इलीगली तौर पे ये काम करता है तो उसको थोड़ी सजाएं जजाएं किए जाएं, जुर्माने किए जाएं, सारी किए जाए, तो थोड़ा हमारे लोगों को शऊर दिया जाए तो फिर ये चीजें थोड़ी बेहतर हो सकती हैं। इसको हमने कैसे बेहतर करना आगे चल के हम ये भी देखेंगे।
उसके साथ साथ हमारे इन्हीं सारी मकसद की वजह से, रिसाइकलिंग ना करने की वजह से हमारे रिसोर्स भी डिप्लीट हो रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, कभी इतनी देखे हम ब्रॉड लेवल पे आबादी तो हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज मैनेजमेंट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे पास गैस के जखायर कम हो रहे हैं, और इन सारी चीजें कम क्यों हो रही हैं? ये हमारे अगर प्रॉपर यूज करने का ही मसला है। अगर हम इनको प्रॉपर यूज करें, रिसाइकल करें, न्यू रिसोर्सेज इन्वेंट करें, तो हमारे पास काफी मिकदार में रिसोर्सेज हैं जो हम आने वाली नस्लों के लिए बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजीज क्या होगी? अब हमने ये मसले मसाइल तो बता दिए, अपना सारा चूरन बेच दिया कि ये मसले हैं, ये मसाइल हैं। तो वैसे आप लोगों के एक माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि आप इसको कैसे कम कर सकते हैं, आपके पास क्या स्ट्रेटजीज है, आपके पास क्या जादू है जिसकी वजह से आप इसके अंदर हिस्सा डालना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप इसके अंदर अपनी एफर्ट पुट करना चाह रहे हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर प्रमोटिंग एजुकेशनल कैंपेन एंड सोशल मीडिया कैंपेन्स। ओब्वियसली आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम अच्छे पर्पज की तरफ भी लेके जाएं। हम अपने आप के लिए सोचें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचें। हम ये वाली कैंपेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में थे, लोगों को अवेयर करें। अगर एक बंदे को हम अवेयर करते हैं, वो अपने घर में लोगों को अवेयर करेगा, उस घर से आगे इस तरह एक मुआशरे को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप खुद चेंज हो जाए, तो आपका मुआशरा ऑटोमेटिकली काफी हद तक चेंज हो जाता है। हम ये वाली सारी कैंपेन सोशल मीडिया से करते हुए, इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हुए लोगों को एजुकेट करेंगे, और साथ में डिफरेंट जो हमारी हायर ऑर्गेनाइजेशन हैं और अदर एनजीओ हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेट करके हम उनको बता सकेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इवन के आपको पता है कि बड़े ब्रॉड लेवल के ऊपर ये ऐसी कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाती हैं, हेल्थ समिट होते हैं, क्लाइमेट चेंज के सेशंस होते हैं। तो हम उनको बता सकें वी आर आल्सो going for climate change, we also conducting session for climate change, we also motivation for climate change, then we can collaborate for further process। और हम अदर हायर ऑफिशियल जो है, आपको पता है पाकिस्तान में हेल्थ या इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज होती हैं जो इसके ऊपर एक्शंस लेती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं। हम इसके साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं और इसमें अपना रोल अदा कर सकते हैं। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या आने वाले हैं? हमारे पास सबसे पहले तो ये कि ऐसा इशू कॉम्प्लेक्स है जिसके ऊपर कोई आवाज उठाता ही नहीं है, लोग क्या इसको इग्नोर कर देते हैं। दूसरा, हमारे पास काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। अगर आप एक कॉमन मैन को बताएं ना, ये आपका इसको इस तरह कूड़ा ना फेंके या कुछ ना करे, तो आपकी बात नहीं सुनेगा। उसको सबसे पहले ये बताएं कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आप कैसे इसको आगे टैकल कर सकते हैं, ये क्यों आपके लिए जरूरी है, आपको इससे क्या कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, आपको इससे डिजीजेज हो सकती हैं, आपका पानी खराब हो सकता है, आपको काफी सारी बीमारियों को सामना हो सकता है। तो ये सारी चीजें जब हम एक कॉमन मैन को अंडरस्टैंड करवाएंगे, तो इसमें वो भी अपना रोल अदा करेगा। साथ में पीपल इसकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं शो करते। ओब्वियसली आपको पता है कि हमारे लाइफ है, अगर एक हमारा कंफर्टेबल जोन है, अगर कंफर्ट जोन कोई भी हमारा ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियसली हम ह्यूमन है, हम उसको रिएक्शन दिखाएंगे। ऑब्वियसली हमने 20-25 मिनट अपनी जिंदगी के लगाए हैं, अभी इस सेशन के ऊपर इन्वेस्ट किए हैं, तो क्या हमें इससे क्या गेन होता है, हम इसको देखेंगे। क्या चीज है जिसके ऊपर हमें आज बैठे हैं 20-25 मिनट के लिए, हमें से कुछ हासिल भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका मकासद क्या थे? तो ऑब्वियसली हम इसको इस तरह लेके चलते हैं। हम अपने मुआशरे के लिए एक पॉजिटिव अपना इमेज क्रिएट करना चाहते हैं। अगर हम एक इस तरह के मुआशरे को लेके चलेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो हम ये सारी चीजें डेडिकेशन के साथ कर सकते हैं। कंटिन्यूसली अपने ख्वाबों को ऊपर मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए, पाकिस्तानी आवाम के लिए कुछ करने का अगर जज्बा रखते हैं, तो हमें ये सब करना होगा। और इसके लिए हमें सस्टेनेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। और कैसे क्रिएट करेंगे? आप जैसे और मेरे जैसे नौजवान इसके अंदर हिस्सा डालेंगे और ये सारी चीजें होती जाएंगी। तो बाकी हम अपनी जो भी लोग हैं उनको अप्रोचेस कर सकते हैं, डिफरेंट एनजीओज को अप्रोच करेंगे, अपने गोल्स उनको बताएंगे और उनको बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिजीज के साथ कैसे लिंक्स हैं, और इसके साथ वेस्ट मैनेजमेंट के इसमें क्या प्रॉपर तरीकाकार है, हम उनको बताएंगे। और डिफरेंट लोगों को हम इनवाइट करेंगे। आगे फर्दर चल के हमारे मजीद सेशंस आएंगे जिसमें आप लोगों को और भी कुछ इसके बारे में जानने के लिए मिलेगा। और हम इसके अंदर मुआशरे में जब एक अक्सर आप कहते हैं ना कि जब भी आपने किसी चीज के लिए निकलना है, तो सबसे पहले आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी फेस करने हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स भी फेस करने हैं। आपको 4 बंदे सपोर्ट करेंगे, 4 बंदे सपोर्ट नहीं करेंगे।
अगर आप इस मकसद के लिए निकले तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी डेडिकेशन के साथ चलेंगे तो ये काम आगे होगा। और यही हमारे गोल हैं, लोगों को बीमारियों से बचाया जाए, अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, और इस इन्वायरमेंट को कैसे क्रिएट करना है वो हम फर्दर चल के देखते रहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आखिर में ही मैंने आपको बोला था कि ये सारी चीजें डेडिकेशन के साथ हैं, तो ओबियसली आप लोग इसके अंदर किरदार अदा करेंगे तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए हम अच्छे इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर। जी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन रही थी। अब 2-3 अनाउंसमेंट है। एक तो ये कि सर्टिफिकेट के लिए आपका जो जिस नाम से आपने साइन अप किया था वही नाम टैली करके आपको लिंक मिल जाएगा। सेकंड, हम एक अमल एम्बेसडर प्रोग्राम करेंगे, उसकी भी आपको ईमेल आ जाएगी सर्टिफिकेट के साथ। और थर्ड आपका ये है कि नेक्स्ट एक बहुत ज़बरदस्त सेशन होगा जिसमें हमारे बहुत प्यारे और बहुत ज़बरदस्त स्पीकर आएंगे। उसमें आप सब ने लाजमी ज्वाइन करना है, आपको उससे और बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड लेट मी कंक्लूड दिस ऑन अ पॉजिटिव नोट कि हाँ, एक एक कतरा करके दरिया बनता है। अगर हम सिर्फ अपने लेवल पे काम शुरू करेंगे तो हमें जल्द बहुत अच्छा अपने इन्वायरमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। सो अपना सब ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर एंड गुड लक। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।